from solving massive systems in engineering to powering computer graphics and AI. Matrices are the hidden language of modern mathematics. So, let's discuss about the chapter that is matrix. Do you know what is matrix? Matrix क्या है? Matrix एक, you are going to represent matrix in a rectangular form. Rectangular block is there. Yes, rectangular block is there, like A, B, C and D. This is the symbol for the matrix. So here you are going to write down the terms for the real numbers is to be there, right? So you can just put the values in this rectangular block. This will show the matrix to you. So now moving for the types for the matrix. One is the row, other one is the column, and the identity matrix is there, right? So if we are talking about the row matrix, this is called the row. This is called column, right? Like if you are take one example, 2, 3, 4 and 5. So this is called the row. और row क्या होता है आपके पास? ये पूरी की पूरी, this is called the row 1. This is row 2, right? This is called the column, यानी कि column 1. This one is the column 2. ये है आपके पास एक मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिखते हो, और ये जो मैंने रो और कॉलम यहां पे लिखे हैं, दे आर द टाइप्स फॉर द मैट्रिक्स हियर, ठीक है? मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, ठीक है? एंड मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, एंड द अदर वन इज दी, अगर एक ही रो है तो मैं उसको रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? और अगर मेरे पास एक ही कॉलम है तो उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट? And third one is, this is the first one, this is the second one, and third one is the identity matrix, the basic type. अभी तो सिर्फ basic type है, right? Identity matrix जो होता है आपके पास, an identity matrix behaves like number 1 in algebra. It behaves like number 1 in algebra. Number 1 in algebra. ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए शो करता है, राइट? देन वी हैव ऑपरेशंस एंड मैट्रिक्स लाइक एडिशंस, subtraction is to be there, operations is to be there. So the first one is the addition of the matrix. Addition, okay? Subtraction is there. Multiplication is also there, right? But for addition we add corresponding elements of the matrix. यानी कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स आपके पास हैं 2, 3, 4 and 5, and you have to add 2, 3, 7 और 4, तो corresponding elements, right? इसके correspond ये है, 3 के correspond this 3 is to be there, 4 के correspond 7 and 5 के correspond 4 is there, right? तो corresponding elements जो होंगे वो आपस में ऐड होंगे, जैसे 2 plus 2 that is 4, 3 plus 3 6 is there, 7 plus 4 that is 11 and 5 plus 4 that is 9. So this is the final answers for the addition one, right? Subtraction is to be like, subtraction जो है आपके पास वो इसी तरीके से होगा. अगर इधर प्लस की जगह माइनस होता तो it will give you the result 2 and 2 0. 3 minus 3 answer is to be 0. 4 minus 7 answer is minus 3, and 5 minus 4 answer is 1. So it will give you the result like that. And for multiplication, this is for the first one, second, and third one is for the multiplication. Yes, for multiplication, row multiply by column method is used. Row and column को multiply करते हैं, row and column method is there. इस मेथड से आप रिजल्ट निकालोगे, ठीक है? और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट
commutative. This is the sub part, right? Commutative, additive, associative, they are the properties for the matrix. And okay, so for multiplication, if you are talking about the multiplication में रो और कॉलम का जो ऑपरेशन मेथड है बेसिकली आपके पास वो यूज होगा. ओके, बेसिकली मैट्रिक्स जो है आपके पास, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स. इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स. दिस इज द मैट्रिक्स. Okay, but we are just talking about the addition, subtraction and multiplication. They are the operations which are going to be used in the matrix, right? Now moving with the determinant. So determinant of a matrix क्या होता है? Okay, पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैट्रिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जनरली नॉट कॉम्यूटेटिव. जो भी मैट्रिक्स आपके पास है जनरली वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि ए बी जो है आपके पास विच इज नॉट इक्वल टू बी ए, दिस इज द कॉम्यूटेटिव. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस. ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैट्रिक्स की. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स में आप देखेंगे. कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपको पूछा होगा क्या ये एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो आपको पता होगा. ए बी का मतलब है कि आपको ए और बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. बी ए में आपको दोनों बी ए मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल नहीं आएंगे. तो बेसिकली आपके पास ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मैट्रिक्स जो है आपके पास मल्टीप्लीकेशन इज जनरली नॉट कम्यूटेटिव, जनरली. तो इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज देयर. तो इसका मतलब है इट मींस इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम. जितने भी रोज हैं, जैसे ये मेरे पास एक रो है और ये मेरे पास एक कॉलम है, तो रो जो है आपके पास वो इंटरचेंज हो जाएगी किससे? कॉलम से, राइट? यानी कि इधर 0 0 था तो मेरे पास इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? 0 0 -3 एंड 1. यहां पे मेरे पास क्या हुआ? जो रो थी उसने कॉलम बिहेव कर दिया. दिस वन इज द कॉलम नाउ एंड दिस वन इज द रो, राइट? C1 R1, दिस इज द R2 and this one is the C2, right? Now moving for the determinant. Determinant of a matrix, right? Yes. For matrix, take one example. अगर मेरे को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D, right? A B C D, whatever the terms is to be there, whatever the values, real numbers, okay? तो if you are talking about the determinant, let's suppose this one is the A matrix, okay? तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है. इट विल रिप्रेजेंट्स लाइक दैट, ओके? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मोड से. तो ये मेरे पास रिजल्ट बनाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि AD माइनस CB, ओके? AD माइनस CB, ये मेरे पास रिजल्ट बता देगा किसका? एक डिटर्मिनेंट का. AD माइनस CB BC, ठीक है? AD माइनस, या जैसे अगर कोई एग्जांपल ले, मान लो ये मेरे पास आ गया 4 1 2 एंड 3. तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं 4 2 1 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 3 जा 12 माइनस 2, आंसर इज टू बी 10 देयर, राइट? एंड फॉर इनवर्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनवर्स नाउ, तो इनवर्स के केस में क्या होगा? इनवर्स वर्क्स लाइक रेसिप्रोकल इन नंबर्स. It works like reciprocal in numbers. Applications, few applications is to be there which are going to be applicable in some fields. यानी कि matrices are used in computer graphics, जो यूज की जाती हैं, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इज देयर, क्रिप्टोग्राफी, राइट? AI में बहुत यूज होगा, इकोनॉमिक्स इज देयर, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एनिमेशन एंड गेमिंग में भी जो है आपके पास वो मैट्रिक्स जो है बेसिकली वो यूज किए जाते हैं. तो अगर कैन अ मैट्रिक्स हैव मोर देन 2 डायमेंशंस? आई हैव अ क्वेश्चन.
कैन अ मैट्रिक्स हैव मोर देन 2 डायमेंशंस? और अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस वे में पूछूं, व्हाई डू यू थिंक मैट्रिसेस आर यूजफुल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एआई? मैट्रिक्स जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई में क्यों यूज होता है और वो इसका क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? तो बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई में उसका यूज इसलिए होता है क्योंकि मैट्रिसेस आर नॉट जस्ट टेबल्स ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट जस्ट अ टेबल ऑफ नंबर्स। ये जो है आपके पास, दे आर द पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स। ये क्या ये जो है आपके पास, ये एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज, ट्रांसफॉर्म एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसको अंडरस्टैंड करेगा मैट्रिक्स से, राइट? सो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट था और मैट्रिक्स के मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताई जो आपकी कहां पे जो है वो एप्लीकेबल्स हैं। ट्रांसपोज वी हैव डन, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कॉम्यूटेटिव के बारे में थी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज देयर, एडिशन इज देयर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपको बता दिया, इट बिहेव्स लाइक नंबर 1 इन अलजेब्रा फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, दिस इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। नंबर 1 आइडेंटिटी के केस में हमेशा याद रखना, डायगोनल आपके पास 1 1 होंगे और इधर जो बाकी हैं वो 0 0 एलिमेंट्स इज टू बी देयर। डायगोनल में आपके पास क्या होंगे? डायगोनल में आपके पास 1 1 इज देयर। अगर मेरे को बोले, और ये जो है आपके पास, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द 2 ऑर्डर 2 by 2, यानी कि 2 और 2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स है। उसी तरह अगर मुझे बोला गया कि 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बनाओ, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज आई, विच इज इक्वल टू, वो बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज द 3 क्रॉस 3, यानी कि रो भी मेरे पास 3 है और कॉलम भी मेरे पास 3 है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैट्रिक्स, राइट? So I hope this session helped you to understand the basic concept for the matrices.